Professor Alok Dhawan, Director CBMR, Dr. V.K. Sharma, Professor, Department of Chemistry, Lucknow University, our Principal, Dr. Devendra Singh, respected faculty members, research scholars, and all my dear friends at INCOMARCS 24, that is International Conference on Multidisciplinary Approaches to Chemical Sciences Day 1, organized by Department of Chemistry, National Postgraduate College, Lucknow. We are delighted to see so many distinguished guests and participants or research scholars from all across the country. As Helen Keller once said, alone we can do so little, together we can do so much. Today, we gather to explore the power of collaboration and innovation in the various fields of chemical sciences. Throughout our sessions today, we'll be delving into key topics that challenge us and inspire growth. This conference is a testament to our collective commitment to change, learn, and innovate in the field of chemical sciences, pharmaceutical chemistry, biochemistry, and many more. We'll hear from esteemed speakers, participate in engaging workshops, and have opportunity to network with fellow professionals and researchers in the field through offline and online mode. Each of you plays a vital role in shaping the future of our chemical sciences. Let us embrace this opportunity to share our insights, inspire one another, and create pathways for impactful collaborations. Thank you for being here, and let's get started on what promises to be an enlightening and enriching experience. Saraswati Namastubhyam, Varde Kamarupini, Vidyarambam Karishyami, Siddhir Bhavatu Me Sada. भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर के नाम से होती है. Before we start anything auspicious, we light the auspicious lamp. As we gather here today for the conference, let us take a moment to invoke the blessings of Goddess Saraswati, the embodiment of wisdom, knowledge, and learning. For this, I would like to request our Honorable Chief Guest, Dr. Rajendra Singh, Guest of Honor, Professor Alok Dhawan, Professor V.K. Sharma, and our Principal, Dr. Devendra Kumar Singh, for the lightening of lamp along with the Saraswati Vandana by Agrima, Muskan, and Unnati, a prayer that honors her divine presence and seek her blessings for knowledge and inspiration. Gama pani da 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 sa pa pa pani ma ma pa ma gama pani sa. Ma Saraswati Sharade, Ma Saraswati Sharade, तूने इस अज्ञान उदधि से, तूने इस अज्ञान उदधि से वीणा वाणी तार दे.
सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते हे सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते हम शिशु हैं अज्ञानी माता इन चरणों का प्यार दे वीणा पानी तार दे तार दे तार दे माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे 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 एक और परंपरा है अतिथि देवो भव. As we gather here, let us take a moment to recognize the beauty of collaboration. And now, for the floral compliments, I would like to request our Honorable Principal Sir, Professor Devendra Kumar Singh, to give bouquet and token of honor to our chief guest, Dr. Rajendra Singh, and to our guest of honor, Professor Alok Dhawan. Also, I would like to request Dr. Vikas Singh, HOD Department of Chemistry, to give bouquet and token of honor to Professor Vikesh Sharma Sir, Lucknow University, and our principal, Dr. Devendra Kumar Singh. Okay. Professor Alok Dhawan, sir. Also, I would like to request Dr. Vikas Singh, HOD Department of Chemistry, to provide bouquet and token of honor to our principal, Dr. Devendra Kumar Singh. क्या करा रहा है? Now I would like to request Dr. P.K. Singh to provide the same to Dr. Atul Goel, sir. Now, I would like to request Dr. Vikas Singh, HOD Department of Chemistry, to provide bouquet and token of honor to our principal, Dr. Devendra Kumar Singh.
Thank you for sharing your time and wisdom with us today. We look forward to the insight you will bring, helping us to bloom in all our own ways. Now, I would like to call Dr. Rituraj Mishra, sir, Assistant Professor, Department of Chemistry, on stage for further proceedings. Thank you, Ananya, for conducting the floral compliment session. And my sincere apologies for the confusion during presenting of the bouquet. She's our MSc student, so I think we can spare this kind of mistake to her. So good morning, everyone. It is my distinct pleasure to welcome you all the INCOMAX 2024 conference. I would like to extend a special welcome to our distinguished guests on the dais, our chief guest, Dr. Rajendra Singh, our guest of honor, Professor Alok Dhawan, Professor V.K. Sharma from Department of Chemistry at University of Lucknow, our principal, Professor D.K. Singh, and also we have our plenary speaker, Professor Atul Goyal, who is Chief Scientist at CDRI. Thank you, sir, for your gracious presence on the very first day of the conference. I would also like to welcome Professor P.K. Singh, who is Proctor and HOD Geography, and all the assistant professors from various departments. A warm welcome also goes to all the participants online and offline, as well as our esteemed speakers who will share their valuable insights with us through this conference. Your presence here today signifies a collective commitment to advancing our understanding of multidisciplinary approaches to chemical sciences. I hope that you all will enjoy these days of the conference. So before inviting our principal, sir, for the welcome address, I would like to share a few things about him. So when we have first proposed hosting of this conference, this international conference, our principal reassured again and again for not to worry about the financial matters and encourage us to focus on our vision. With his support, later we have secured the funding from Anusandhan National Research Foundation, SERB. So with this, it is my immense pleasure to invite our principal, Professor Devendra Kumar Singh, to deliver the welcome address. Please join me in welcoming him. धन्यवाद। मैं यहाँ पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आप जल पुरुष, वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। महाविद्यालय परिवार में महाविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस के इस सेलिब्रेशन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित विख्यात साइंटिस्ट, लखनऊ विश्वविद्यालय के एलुमनाई, विभिन्न रिसर्च सेंटर के आप डायरेक्टर रहे हैं। वर्तमान समय में आप सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। आपका सौम्य स्वभाव, महाविद्यालय के प्रति आपका स्नेह और कई बार कई कार्यक्रमों में महाविद्यालय के आपकी उपस्थिति रही, आपका प्रेरणास्पद उद्बोधन रहता है। हम सब लोग इससे अभिभूत हैं और आपको पुनः महाविद्यालय प्रांगण में हमारे इस सेमिनार कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आपको उपस्थिति, मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आदरणीय प्रोफेसर वी.के. शर्मा जी, लखनऊ विश्वविद्यालय केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के विख्यात प्राध्यापक हैं। आज के इस कार्यक्रम में
मैं आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। CDRI के चीफ साइंटिस्ट प्रोफेसर अतुल गोयल जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। नेशनल PG कॉलेज अपने 50वें स्थापना दिवस पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है। सर ने हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि हर डिपार्टमेंट अपना एक गोल्डन जुबली लेक्चर सीरीज भी आयोजित करे, जिसमें अपने विषय के जो विख्यात स्कॉलर हैं उनको बुलाएं। मैं निश्चित रूप से आपके इस यूजफुल जो सजेशन है उसको निश्चित रूप से हमारे हर डिपार्टमेंट के द्वारा उपयोग किया जाएगा। आज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये केमिस्ट्री के विभिन्न सब्जेक्ट में उसकी क्या उपयोगिता है। एक प्रकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में कहा है कि हर सब्जेक्ट का अपनी एक लेगेसी होती है। निश्चित रूप से केमिस्ट्री एक वर्तमान समय में एक इंडस्ट्री बेस्ड सब्जेक्ट है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, विभिन्न क्षेत्र में फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, हर जगह केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। लेकिन मैं हिस्ट्री का स्कॉलर हूँ। इस रूप में मैंने देखा कि क्या इतिहास में भी केमिस्ट्री की उपयोगिता है। तो जब मैंने बहुत बारीकी से देखा तो पता लगा हिस्ट्री का एक एरा ही, जिसे हम ब्रॉन्ज एरा कहते हैं, कांस्य युग कहते हैं, पूरी तरह उसका बेस ही केमिस्ट्री था। जब स्टोन एज से हम निकल रहे थे, हमारी सभ्यता आगे बढ़ रही थी, तब उनको बहुत से टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत से वेपन की ज़रूरत पड़ती थी। तब हमारे जो सभ्यताएं आगे बढ़ रही थी, उस समय के जो व्यक्ति थे, मनुष्य थे, उन्होंने ब्रांज को, कांस्य का आविष्कार किया। और हम जानते हैं कि टिन और कॉपर के मिक्सचर से ब्रांज तैयार होता है। और फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इस ब्रांज की देन थी, इस मेटल की देन थी, जिसके कारण पूरा ग्लोबल वर्ल्ड, लगभग 5 सिविलाइजेशन एक साथ पूरे विश्व में ब्रांज के बल पर आगे बढ़ी, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, जिनका बेस केमिस्ट्री की ये खोज थी, केमिस्ट्री के द्वारा, जिसने एक एरा को जन्म दिया। और हिस्ट्री के बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल थे जिसको कार्बन डेटा परीक्षण के माध्यम से पब्लिक के सामने लाया गया, जिस पर हम डेट जान लेते हैं। जैसे द्वारका की खुदाई के दौरान SR राव जो प्रोफेसर, उसकी उन्होंने जो भी फैक्ट लिए उसका कार्बन डेटा परीक्षण कराया। और संयोग देखिए, जब कुरुक्षेत्र की खुदाई हुई तो दोनों का टाइम, और महाभारत पीरियड में जो एक सूर्यग्रहण लगा था, जब कृष्ण भगवान के सहयोग से अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था, तो उस समय वास्तव में सूर्यग्रहण लगा था। और इन तीनों का डेट एक ही समय पे आया। तो यदि केमिस्ट्री वहाँ ना होती, कार्बन डेटा परीक्षण न किया गया होता सारे डॉक्यूमेंट्स का, उस समय जो भी कुछ अवशेष मिले थे, तो शायद हम ये तीनों घटनाओं का एक साथ जोड़ करके ना देख पाते, और फिर हम ये जान ना पाते कि जयद्रथ वध के दौरान जब कृष्ण भगवान ने सूर्य को छिपा लिया था, वो वास्तव में सूर्य ग्रहण था, और इन तीनों घटनाओं का समय एक ही था। तो केमिस्ट्री ने बहुत से ऐसे मानव सभ्यता के अनसुलझे सवालों को सुलझाया, और अथर्ववेद में पहली बार रस सिद्धांत के बारे में बताया गया है।
शायद रसायन शब्द वहीं से आया होगा, और उसमें कई मेडिसिन के बारे में बताया गया है। और जब हम और आगे बढ़ कर के देखते हैं तो आयुर्वेद का जन्म हमारे समझ से अथर्ववेद के रस सिद्धांत से हुआ, और जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो सारी इसी व्यवस्था के तहत बनाई गई हैं कि वो रस सिद्धांत के आधार पर थीं, या फिर उनको एल्कोहलिक फार्म में लाया गया, और सारा आयुर्वेद का बेस यही है, और शायद होम्योपैथी का भी बेस यही है। और एलोपैथी को तो हम जानते ही हैं कि पूरी तरह से केमिस्ट्री बेस्ड तो है ही है। तो केमिस्ट्री का उपयोग इंडस्ट्री में, मानव जीवन में, विभिन्न तरह के सब्जेक्ट को समझने में और पहचानने में है। हमारे विद्वान अतिथिगण निश्चित रूप से इन सब बहुत से चीज़ें ऐसी बताएंगे जो हम लोग नहीं जानते। और आज का सेमिनार लगभग 300 स्कॉलर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो अपने विभिन्न सेशन में अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे। अब्राड से भी बहुत से लोग हमें ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हैं, और मैं केमिस्ट्री के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह जी को इस बात के लिए शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने एंटायर डिपार्टमेंट के माध्यम से और साइंस फैकल्टी के सहयोग से ये एक अच्छा और काफ़ी यूजफुल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पीजी के, रिसर्च के, उन सब के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और उनके आगे के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा। धन्यवाद। I would like to thank our principal sir for such enriching welcome address, because he has connected the history with the chemistry and all the different kind of sciences. I am very weak scholar of history, so I find myself enriched after his welcome address. Now, in the next list, we are honored to have our esteemed guest of honor, Professor Alok Dhawan, with us today. Since joining this college earlier this year, I have often heard about Professor Dhawan from my head of department, Dr. Vikas Singh, particularly about his remarkable humility, which has left a lasting impression on everyone. I had privilege of witnessing this myself when we reached out to him for this conference. His humble nature, despite his towering achievements, is truly inspiring. Professor Dhawan is currently the director of Center of Biomedical Research, CBMR, and I have a personal attachment to this institute as I am an NMR methodologist by training. Professor Dhawan has previously served in various prestigious roles, including Director of CSIR Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow, and Founding Director of the Institute of Life Sciences at Ahmedabad University. A pioneer in the field of nanomaterial toxicology, he has made groundbreaking contribution to both genetic toxicology and the safe use of nanomaterials. His work is internationally acclaimed, and he has been recognized with numerous awards, including the INSA Young Scientist Medal, CSIR Young Scientist Award, and the prestigious GSC from the University of Bradford, UK. With over 160 peer-reviewed publications, several patents, and numerous fellowships from scientific academics across the globe, Professor Dhawan's works continue to shape the future of toxicological research. He has also served in numerous leadership roles, including as President of Society of Toxicology India and Editor-in-Chief of the Journal Translational Toxicology. We are deeply honored to have with him us today. Please join me in welcoming Professor Alok Dhawan to the stage. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं इस महाविद्यालय को अपनी तरफ से और अपने संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप अपना स्वर्ण जयंती समारोह सेलिब्रेट कर रहे हैं इस समय, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। किसी भी
संस्था के लिए मैं समझता हूँ 50 साल एक बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि एक ऐसा समय है जहाँ पर हम विचार करते हैं कि संस्थान ने क्या किया और कैसे हमने सोसाइटी को प्रभावित किया। मैं समझता हूँ नेशनल पीजी कॉलेज ने लखनऊ में एक अपना मुकाम बनाया, अपना स्थान बनाया है, और जिस प्रकार से बच्चे यहाँ से ट्रेन होकर निकलते हैं वो इसका एक उदाहरण है कि यहाँ की जो टीचिंग है, यहाँ का जो एक तौर तरीका है जो सिखाया गया यहाँ पर, उसकी वजह से बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी में। जहाँ तक इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की बात है, मैं समझता हूँ बहुत ही एक अच्छा विचार है। मैं समझता हूँ कि जब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो मंच पे आसीन जितने लोग बैठे हैं सब रसायन विज्ञान से किसी न किसी तरह से जुड़े हैं। और जो हमारे प्रधानाचार्य महोदय, इन्होंने आज अभी बात करी कि मैं हिस्ट्री का हूँ, तो मैं जब पीछे गया तो मैंने रसायन विज्ञान को पाया। मैं केमिस्ट्री का हूँ, रसायन विज्ञान से एमएससी करी। मैं हमेशा अपने बारे में कहता हूँ कि एमएससी केमिस्ट्री से करा, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री से करा, रेस्ट इज हिस्ट्री, क्योंकि थोड़े थोड़े दिन में मैं अपनी जो अनुसंधान का क्षेत्र था वो बदलता गया। तो मैं रसायन विज्ञान से हिस्ट्री की तरफ गया, आप हिस्ट्री से रसायन विज्ञान की तरफ आए। बाकी हमारे जितने हमारे जो मुख्य अतिथि बैठे हैं वो स्वयं जल पे तक काम किया, तो वो भी रसायन से जुड़े हुए हैं, रसायन विज्ञान से। अतुल भी रसायन विज्ञान से जुड़े हैं और प्रोफेसर शर्मा जी भी रसायन विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो एक तरीके से हम देखें तो बिना रसायन विज्ञान के कोई भी चीज़ आज की दुनिया में संभव नहीं है और कभी भी नहीं रही। तो अगर हम अपने को स्वयं को देखें तो जो हमारे अंदर जितनी भी संरचना है, चाहे सेलुलर हो, चाहे ऑर्गेनिज्मल हो, चाहे ऑर्गन की संरचना हो, सब रसायन से जुड़ी हुई है। जितनी भी हमारे अंदर प्रक्रियाएं चलती हैं वो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। जो हम खाना खाते हैं वो रासायनिक प्रक्रियाओं से टूट के अलग अलग घटकों में चला जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम समझें कि रसायन विज्ञान एक तरीके से केंद्र बिंदु है हर चीज़ का। चाहे हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें, चाहे हम क्लाइमेट चेंज की बात करें। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तब भी सबसे पहले चीज़ आती है कि साहब जो कोयले से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हालांकि वो भी एक रसायन प्रक्रिया है, लेकिन धीरे धीरे करके हम उसको क्लीन एनर्जी की तरफ ले जा रहे हैं, वो भी एक रसायन प्रक्रिया है। चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो, चाहे वो सोलर सेल्स की बात हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो, सब एक तरीके से रसायन प्रक्रिया है जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, जो एक कार्बन फुटप्रिंट जिसको हम कहते हैं वो उसको कम से कम रखें। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो पॉलीमर्स हैं, ये सबसे प्रदूषित करने वाला पॉलीमर रखा है हमारे सामने। धीरे धीरे करके इस पे भी बहुत सारा काम चल रहा है कि किस प्रकार से हम पॉलीमर ऐसे बनाएं जो बायोडिग्रेड हो सके, जिनका कि लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे ना पड़े या मनुष्यों पे ना पड़े। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम केवल मनुष्यों की बात करके रुक जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे, जो कीटाणु हैं, चिड़ियाँ हैं, जो पूरा एक जिसको हम बोलते हैं फूड वेब, उस पूरे फूड वेब को हमें संभाल के रखना है, तब हम ठीक रह पाएंगे आगे चल के। आगे आने वाली पुश्तें तभी ठीक रह पाएंगी। और क्योंकि हमारे बीच इतने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व डॉक्टर राजेंद्र सिंह के रूप में बैठे हुए हैं, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक ज़माना था मेरे अपने बचपन में, और एक मैं समझता हूँ एक जनरेशन की बात है कि जब पानी स्वतः हमारी छत तक पहुँचता था, हम लोग पानी छिड़क के और खटिया बिछा के सो जाते थे रात में। लेकिन आज वो अवसर है कि मेरे जो गेट है वहाँ लॉन तक में भी पानी नहीं आता बिना पंप के। तो ये हम देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग ने अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका दोहन किया है और कितना उनको इस लेवल पे ले आए कि अब पानी मिलना मुश्किल है। एक समय में हमारे हैंडपम्प में 25 फुट पे पानी था, इस समय शायद 500 या 600 फुट पे पानी है। तो ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम ऐसी चीज़ें लाएं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लाएं जिससे हम पानी की संरक्षण कर सकें। इसमें भी बहुत बड़ा योगदान रसायन विज्ञान का है। बहुत सारी जगहों पे अगर आप मत्स्य पालन जैसे आप देखेंगे तो मत्स्य पालन में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसके नीचे पहले एक चीज़ बिछाई जाती है, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो दूसरे इस प्रकार की चीज़ें बिछाई जाती हैं जिससे कि पानी भूमि में ना चला जाए और उतने ही पानी में आप
मत्स्य पालन कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, केमिस्ट्री एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है। दूसरा चीज़, अभी हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने बताया कि स्टोन एज थी या ब्रॉन्ज एज थी। तो अगर आप वैसे देखें तो स्टोन एज है, ब्रॉन्ज एज है, आयरन एज है, मॉडर्न एज है, नैनो एज है बोलते हैं, प्लास्टिक एज बोलते हैं, सिलिकॉन एज बोलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हम आदमियों के नाम कहीं नहीं जानते हैं, अपनों को छोड़ के, अपनों में भी गिने चुनों को जानते हैं, लेकिन क्या उन्होंने मटेरियल यूज़ किया वो हम सब जानते हैं उस एज में। तो मैं समझता हूँ यही दर्शाता है कि रसायन विज्ञान की महत्वता क्या है, और इतने वर्षों से, इतने हजारों सालों से जो मनुष्य था उसने किन रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया, किन मटेरियल्स का प्रयोग किया, उससे वो मनुष्य जाना गया, ना कि किसी और चीज़ से। और जहाँ तक आज की बात अगर हम करें तो ये भी एक बहुत आवश्यक होता जा रहा है कि हम किस प्रकार से जो रसायन हैं उनको इस्तेमाल करें। एक आपको बहुत साधारण सा एक उदाहरण मैं देता हूँ कि जो सोल्डरिंग करी जाती है, जितने भी पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं उनमें सोल्डर आयरन होता है और एक सोल्डर वायर होता है। उस सोल्डर वायर में पुराने जो लोग होंगे, बुजुर्ग, उनको ध्यान होगा, जो लोग सोल्डर बहुत करते थे उनके यहाँ जीभ के नीचे, यहाँ होंठ के नीचे एक नीली लाइन पड़ जाती है, इसको ब्लू लाइन बोलते थे। वो दर्शाता था कि उनको लेड का एक्सपोजर बहुत हो गया है, तो थोड़े दिन के लिए उनको हटा दिया जाता था सिस्टम से बाहर। लेकिन धीरे धीरे करके जो केमिकल इंजीनियर्स थे और जो इंडस्ट्री थी उसने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं कि इनको लेड का एक्सपोजर हमारी वजह से हो रहा है। और यही चीज़ अगर आप देखें तो पेट्रोल पंप पे थी, जहाँ पे बेंजीन, ज़ाइलिन, टॉलुइन या लेड, इन चीज़ों का एक्सपोजर होता था, जिसकी वजह से लोगों को आगे चल के काफ़ी इश्यूज़ आते थे हेल्थ में। तो विदेशों में अगर आप देखेंगे तो आपको अपने आप पेट्रोल भरना पड़ता है, आप खुद उतरेंगे, खुद पेट्रोल भरेंगे, तो आपको मात्र 10-5 मिनट का एक्सपोजर होता है। हमारे यहाँ पे जो आदमी पेट्रोल भर रहा है वो 10-10 घंटे पेट्रोल भर रहा है, तो उसका एक्सपोजर 10 घंटे का होता है। तो धीरे धीरे करके जब लोगों को इसका समझ में आया, जैव विज्ञान और रसायन विज्ञान का एक मिलन हुआ, जब समझ में आया कि बायोकेमिस्ट्री कहाँ गड़बड़ा रही है, कैसे रिएक्शन गड़बड़ा रहे हैं, तब धीरे धीरे करके दोनों इंडस्ट्रीज़ को, जो हमने आपको उदाहरण दिए, दोनों में से लेड हटाया गया। दोनों में से तो लेड हटाने के लिए आप समझिए कि केमिकल इंजीनियर जुटे, केमिस्ट्री के लोग जुटे, फिजिक्स के लोग जुटे, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग जुटे, कि जो हम सोल्डर करेंगे वो थोड़े दिन में ख़राब ना हो जाए, उतना मुलायम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसकी पूरी टेस्टिंग हुई। अल्टीमेटली सोल्डर जो था वो सोल्डर वायर लेड फ्री कर दिया गया। इसी प्रकार से जो हमारा पेट्रोलियम था वो बेंजीन और लेड फ्री कर दिया गया। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जैसे हमको समझ में आता जा रहा है, इसी प्रकार से जो हम जिसको हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, अंतोगत्वा वो एक तरीके से केमिकल रिएक्शंस की बात है, कैसे हम उसकी हीट बढ़ती जा रही, कैसे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है, कैसे ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, यूवी बढ़ती जा रही है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करें, फिर उसी पे हम आते हैं कि कैसे हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम जो इस्तेमाल में कर रहे हैं उसको कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी फेंकें ना उसको। तो जो भी हम करते हैं उसके पीछे एक वैज्ञानिक सोच तो होती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान का एक पुट अवश्य मिलेगा। चाहे वो इस कागज़ की बात करें जिसके ऊपर हम लिखते हैं, इसकी वाइटनेस क्यों है, इस पे जो कलर्ड इंक है वो क्यों है, इस सब रसायन विज्ञान है। तो आप अपने इर्द गिर्द जब भी देखेंगे तो आपको अवश्य मिलेगा कि चाहे आप पुराने जो राजा महाराजा थे उनकी तलवारों की बात करें, चाहे किस तरह से उनको हम प्रिजर्व करके ममीज़ बनाते थे, सब रसायन विज्ञान है 100%। जो इजिप्ट की ममीज़ बनी है वो आज तक उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते थे कि वो आज तक ठीक हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो बात हम कर रहे हैं, जिस प्रकार से न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है, जिस प्रकार से कंप्यूटर्स की बात हो रही है, जिस प्रकार से नैनो कंपोजिट्स की बात हो रही है हवाई जहाज़ों में, कैसे उनको हल्का बनाया जाए, किस प्रकार से जो पॉलीमर्स हैं उनको बायो डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाए, कैसे हम उनको अच्छा बनाएं कि उनकी लॉन्जिविटी बढ़ जाए शरीर के अंदर, दूसरा उनकी कॉस्ट जो है अफोर्डेबल हो जाए। इन सब चीज़ों के पीछे मेजरली केमिकल साइंसेस इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है।
और मैं समझता हूँ आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक इस तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है नेशनल पीजी कॉलेज में, जिसमें आप लोग भाग ले रहे हैं। और न केवल ऑफलाइन है बल्कि ऑनलाइन मोड में भी मुझे बताया गया। तो इससे जितने भी लोग हमारे सुदूर जगहों पर बैठे हैं वो भी इसका फ़ायदा लाभ उठा सकेंगे। जहाँ तक हमारे संस्थान का सवाल है, सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, इसमें हम एनएमआर के ऊपर बहुत काम करते हैं, लेकिन एनएमआर का प्रयोग हम क्लिनिकल सैंपल्स के ऊपर करते हैं, जहाँ पर हम पता लगाना चाहते हैं कि बीमारी जो है उसको क्या हम पहले से पता कर सकते हैं, कितनी जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। एक बार हो गई तो क्या हम उसको ये बता सकते हैं कि इस बीमारी किस स्टेज पे है, या जब हम उसको दवाई दे रहे हैं तो क्या हम ये बता सकते हैं इस दवाई का फ़ायदा पहुंच रहा है कि नहीं। तो एनएमआर एक बहुत पावरफुल टूल है जो केमिस्ट्री में भी काम आता है और जैसा कि हमने बताया क्लिनिकल साइंसेज में भी काम आता है। और इससे हम ये पता लगा पा रहे हैं, पीजीआई हो चाहे केजीएमयू हो चाहे राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, इनके डॉक्टरों के साथ मिलके इनके जो मरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिनका कि पॉजिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं अवेलेबल होता है या उनको अमूमन नहीं पहचाना जा सकता। तो उसके लिए भी हमने बायोमार्कर निकाले। वो भी एक तरीके से केमिस्ट्री, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो इस डिजीज़ कंडीशन में दिखाई पड़ते हैं और दूसरी डिजीज़ कंडीशन में नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो जब ये सब पता लग गया उसके बाद अब हमने आईआईटी बॉम्बे के साथ एक अनुबंध किया है, एमओयू किया है, और उनके साथ मिलकर हम एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जिसमें ये जो कंपाउंड्स आइडेंटिफाई हुए हैं इनको हम एक आसान तरीके से हैंडल डिवाइस की तरीके से गाँव में भी ले जाके कर सकते हैं। तो वो डिवाइस बन गई है, अब उसकी पेटेंटिंग प्रक्रिया इस समय जारी है और जब वो हो जाएगा उसके बाद हम उसका वैलिडेशन करेंगे और अगर वो सही निकलती है तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी निकल के बाहर आएगी, जहाँ पर हम लगभग 5 या 6 बीमारियों का स्क्रीनिंग सुदूर गांव में भी कर सकेंगे। तो मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस प्रकार का एक आयोजन करने के लिए। और जैसा कि सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर ने कहा, चाहे जय जवान हो, जय किसान हो, जय विज्ञान हो, जय अनुसंधान हो, इसके पीछे भी सब केमिस्ट्री ही है। तो मैं आप लोग से फिर कहता हूँ कि जो आप लोग की अपने की बीच की केमिस्ट्री उसको ठीक रखें, आपस की केमिस्ट्री ठीक रखें, देशों की केमिस्ट्री भी लोग कहते हैं देशों में बीच में केमिस्ट्री अगर ठीक है। कल ही आपने देखा होगा शायद चाइना से कुछ बातचीत हुई तो वो भी केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ अगर आप अपनी केमिस्ट्री ठीक रखें और आप जो आगे करना है, क्योंकि विकसित भारत अगर बनाना है तो आप ही लोग के कंधे पे सारा दारोमदार टिका हुआ है। तो आप लोग को देखना चाहिए किस प्रकार से आप देश को आगे ले जा सकते हैं, किस प्रकार से उसको और विकसित बना सकते हैं और किस प्रकार से केमिस्ट्री के क्षेत्र में भारत को एक आत्मनिर्भर बनाने की ओर आप ले जा सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ मैं अपनी वारी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। Thank you very much, Professor Dhawan, for your useful thoughts, and I am really very happy how he has correlated the different disciplines of sciences to the chemistry and also to the society, as he was clearly mentioning that with the chemistry and with the multidisciplinary approaches to the sciences, we can resolve the natural problems which we are facing or our society is facing today. He also addresses in a very simple word that how this NMR technique is going to be used for screening of multiple diseases at a time. So thank you so much for the useful thoughts and also paving us a way that we can also organize the next conference, which will not only include the science department, but it will include all the departments other than sciences, so that we can thought of a problem and its solution with the use of multidisciplinary approaches. So now I would like to ask our chief guest to kindly release the souvenir of the conference, and for that I would like Dr.
Vikas Kumar Singh to give the souvenir to all of the chief dignitaries. Further, I would request all our chief delegates to please release the newsletter of National PG College. And please join me in warm release of this newsletter of National PG College. Thank you so much. Now, as I have been told that Professor Dhawan has some other commitments, so he will leave us today at the very good point of the conference where he have show us the way that how we are going to enjoy this conference. So thank you so much for being a part of the conference, and it would have been a very good if you have stayed for the long, but because of other commitments, I would like to thank him, and please join me in thanking him with a great round of applause. So in this session, as I have mentioned earlier, that the part of this conference is funded by Anusandhan National Research Foundation, SERB India. I would like to share a brief story about it. When we were applying for the funding, there was a question asked, because we were filling so many forms, and there was a question that how does this conference contribute to the vision of a Viksit Bharat, a developed India? Our response was that a developed India can only be achieved when we come together to find the solution of the pressing challenges. And those solutions often emerges from the collaboration of multidisciplinary sciences. And we are honored today to have with us such a chief guest who has not only found the solution, but also implemented it to resolve the ever-present challenge of water scarcity by restoring water to some of the driest regions of India, particularly in Rajasthan. He is none other than Dr. Rajendra Singh, fondly known as the Waterman of India. Dr. Singh is a renowned water conservationist and environmentalist, and he has led remarkable effort in reviving 5 rivers and helping over 1,000 villages become self-sufficient in water management through his NGO, Tarun Bharat Sangh. His incredible contribution to the field have earned him prestigious accolades, including the Raman Magsaysay Award in 2001 and the Stockholm Water Prize in 2015. Dr. Singh's work served as an inspiration to all of us, demonstrating the power of grassroots initiatives and the importance of community-driven effort in solving critical environmental challenges. We are deeply privileged
to have him here with us today to share his insight and experiences. So without further ado, I kindly invite Dr. Rajen Singh to deliver his keynote address and give him a big round of applause by welcoming with me. नेशनल कॉलेज लखनऊ के स्वर्ण जयंती समारोह पर इस रसायन के अंतर्राष्ट्रीय मिलन में उपस्थित होकर मैं आनंदित हूँ। मंच पर विराजमान प्रोफेसर डी.के. सिंह, अतुल गोयल और वी.के. शर्मा जी, इस हॉल में बैठे शिक्षकों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, ये जो रसायन का, केमिस्ट्री का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इस अवसर पर ये जानना ज़रूरी है कि रसायन को इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में और इंडियन विजडम में कैसे उपयोग होता था। और यदि हम अपने आज के हालात को देखें, इस औद्योगिक काल में, इस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जगत में इस केमिस्ट्री का रोल क्या है, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि 12,500 साल पहले जब मेरा ये प्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, मुझे नीचे जाके बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। आपके पास है नहीं वो? तो जरा देखिए उसको, खड़े होके काम करना मुझे आता नहीं, जरा वो हाथ वाला ही दीजिए तब तक। प्रेजेंटेशन शुरू कर। तो भारतीय ज्ञानतंत्र में हम लोगों ने रसायन, केमिस्ट्री और भौतिकी, इसको किस तरह से उपयोग किया और किस तरह से जाना और किस तरह से समझा। तो सबसे पहले जब हम अपने भू देखते हैं तो दो बातें समझ में आती हैं कि जब तक हमें टाइम का ज्ञान नहीं था और फिजिकल प्रिंसिपल्स का ज्ञान नहीं था, सिद्धांतों का ज्ञान नहीं था, तब तक ये दुनिया की जो गति थी, ये दुनिया की जो रफ्तार थी, उसका हमें कोई अंदाज नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब दो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, तो पानी की बूंदें बननी शुरू हुई और उसके बाद हम लोग टाइम को समझने लगे और जो हमारे फिजिक्स के सिद्धांत थे उनको भी जानने लगे। उनकी भी एक गहरी समझ हमें और ज़्यादा व्यवहार में आने लगी। और फिर इस पानी की बूंदों ने इस धरती को बनाना शुरू किया, नदियाँ बनी और हम भी बने, पेड़ पौधे सब बन गए। लेकिन इस प्लैनेट पर यदि आप आज की तारीख में अपना रोल ढूंढें कि हमारा रोल क्या है, हमने क्या किया इस प्लैनेट पे, और इस प्लैनेट को जब बनाया तो पेड़ पौधों ने, नदियों ने क्या किया, तो हमें एक बात समझ में आती है कि ये जो 2 हाथ वाला इंसान है और 2 पैर वाला इंसान है, ये इस पूरे प्लैनेट का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। जब से ये प्रभावी होने लगा और इसकी बुद्धि ने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया, तब से इस प्लैनेट पर विकास के नाम पर विनाश की गति तेज हुई। और उस विनाश की गति को तेज होते होते 12,500 साल पहले अथर्ववेद के काल में इस विनाश की गति को ये मनुष्य समझने लगा था। उससे पहले ये जानता नहीं था, क्योंकि तब तक इस नेचर में जो भी कुछ था, इस प्रकृति में जो भी कुछ था, पेड़ पौधे, इंसान, ये सब एक दूसरे से बहुत मेलजोल से एक दूसरे को
जानते और पहचानते थे। और उस काल को भारतीय शास्त्रों में सतयुग कहा है, कृतयुग, जब ये सब बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे और किसी के मन में राजा बनने का भाव नहीं था और किसी के मन में ज्ञानी बनने की एरोगेंस नहीं थी, घमंड नहीं था कि मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। ये घमंड जब तक नहीं था तब तक हम उस काल को सतयुग कहते हैं। फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों के मन में राजा बनने का भाव आया और कुछ लोगों के मन में विद्वान बनने का भाव आया। तो जब राजा बनने का भाव आया तो राजा को यदि अपना राज चलाना है तो बिना शास्त्र के नहीं चल सकता, उसको शास्त्रों का सृजन करना पड़ता है। तो फिर भारत में वेदों की रचना शुरू हुई। इस वैदिक काल में यदि आप देखेंगे तो ये जो अथर्ववेद है, जरा यहाँ पर आ जाइए, मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ जल्दी से। अथर्ववेद में यदि आप देखें तो इसमें कहा है कि, थोड़ा पीछे जाइए, इसके पीछे नहीं, इससे पीछे नहीं, यही लीजिए, हाँ, और आगे, और आगे। कहा है कि जो इंसान इस धरती के प्रति, इस पृथ्वी के प्रति चतुरता भाव से इसका बिगाड़ करता हो, हे पृथ्वी तो उसका वध कर दे। ये जो इंसान है ये उसका नियंता नहीं बना है तब तक, ये तब तक कंट्रोलर नहीं है, तब तक उसी प्रकृति से प्रार्थना करता है कि हे पृथ्वी, तुझे जो भी कुछ बिगाड़ कर रहा है तेरा, तू उसका वध कर दे। ये राजेंद्र सिंह नहीं बोल रहा है, ये आपका अथर्ववेद बोल रहा है। आप संस्कृत पढ़ना जानते हैं, पढ़ लीजिए। वधेन, वध कर दो हे पृथ्वी। 12,500 साल पहले भारत के लोग अपनी धरती, अपनी प्रकृति का विनाश करने वालों का वध करने का संकल्प और निर्णय लेते हैं। आज इस धरती को जो नदियों में जहर घोलते हैं, नदियों में अपना सब कुछ मलमूत्र मिलाते हैं, जो इस पृथ्वी को बिगाड़ कर रहे हैं, उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होती। जो सबसे ज्यादा, जिस इलाके में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहां की नदियां सबसे ज्यादा गंदी होती हैं। भारत का सबसे प्राचीन ज्ञान केंद्र दिल्ली, वहां एक यमुना नाम की नदी बहती है। अब उसको नदी कहना भी शर्मनाक लगता है, वो नाला बन गया है। बंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, वहां 5 नदियां हैं। मीठी, दहीसर, अभी मैं नाम भूल रहा हूं, 5 नदियां, पांचों की पांचों नदी नाले बन गई हैं। तुम्हारा लखनऊ, गोमती, जहां जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहां जितने ज्यादा प्रशिक्षित लोग रहते हैं, वहां की नदियां सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। यदि मैं ये बात गलत बोल रहा हूं तो हाथ उठा के बोलो मुझे जरा। तो भाई, फिर तुम रसायन पढ़ने वाले लोग, रसायन को जानने वाले लोग और इस रासायनिक युग के निर्माता लोग ऐसी जीवन पद्धति क्यों जीते हैं? ऐसी जीवन पद्धति क्यों बनाते हैं जिस जीवन पद्धति में आपको जीने के लायक नदी ना बचे, आपको स्नान करने के लायक गंगा ना बचा सकें, जिस गंगा को आप कहते हैं मोक्षदायिनी, अमृत वाहिनी, क्या उच्च श्रेणी के नाम हम अपनी माँ का, गंगा का लेते हैं, लेकिन वो अब स्नान करने के लायक भी नहीं बची हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत होगी कि हमारी ये शिक्षा जब विद्या से नीचे आ जाती है, जब शिक्षा विद्या के ऊपर बैठ जाती है, तब हमारी जीवन पद्धति का ये हस्र होता है जो आज है। जब तक भारत में विद्या थी, अथर्ववेद के काल से जब हम विद्या में जीते थे, तब हम हमारी जीवन पद्धति में
प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान दोनों था, और उस प्रकृति में हमारी आस्था और श्रद्धा थी, और उस प्रकृति को हम भक्ति भाव से देखते थे, तभी हम दुनिया के गुरु थे। जब से हम ये मैकाले की शिक्षा पद्धति आई, इस मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारी जीवन पद्धति को, हमारे लाइफ स्टाइल को बदल दिया है, और इस लाइफ स्टाइल में अब प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान की कोई जगह नहीं बची है। तो दोस्तों, हम यदि रसायन का, भाई प्रोफेसर डीके शर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें कही, हिस्ट्री में हमें लेके गए, वो प्रमाणिक बातें कही, लेकिन उन प्रमाणिक बातों को जानकर भी फिर हम इस रसायन को इस तरह से क्यों नहीं उपयोगी बनाते कि इस धरती पर बहने वाली नदियां नाले ना बने, इस धरती पर बहने वाली नदियां प्रदूषित ना हो। तो जब तक हम रसायन को अपनी जीवन पद्धति के साथ प्रेम से जीना ना सिखाएंगे, तब तक आपके रसायन की जितनी ऊंचाइयां बढ़ेंगी, उतना विनाश का दौर इस धरती पर ज्यादा तेजी से चलेगा। यदि इस धरती को विनाश मुक्त बनाना है, तो फिर रसायन को समग्रता में लेके आना पड़ेगा। रसायन को जब हम इंटीग्रेशन में लेके आएंगे, तब हम लोग सही में एक सनातन विकास की प्रक्रिया चला सकेंगे, जिसको हम सनातन कहते हैं। इस सनातन का मतलब क्या है, जरा समझ लो। ये सनातन हिंदू शब्द नहीं है, केवल हिंदुओं ने उसको अपना शब्द बना लिया। ये बड़ा साइंटिफिक वर्ड है, सनातन। सनातन का मतलब होता है सदैव नित्य न्यूतन, सदैव नित्य न्यूतन निर्माण होना। अरे भाई, तुम मुझे दे के चले गए, तुम जब तक ये लगाओगे नहीं तो कैसे होगा? किसी के हाथ में ऐसे ही पकड़ा दो, तुम मशीन ऐसे थोड़े चलता है। तो सदैव नित्य नूतन निर्माण, जिसको आजकल अंग्रेजी में एक घटिया सा शब्द आया है अंग्रेजी का, सस्टेनेबिलिटी। ये बड़ा घटिया शब्द है, वो सनातन के सामने कहीं टिकता नहीं है, सनातन से 100 गुना नीचे है। सस्टेनेबिलिटी भी ठीक है, हम सस्टेन करते रहें, टिके रहें, उसको टिकाऊपन कहते हैं, पर ये टिकाऊपन हमारे सनातन के सामने कहीं नहीं टिकता। इसलिए हमें रसायन में यदि आगे जाना है, तो फिर उसका जो सनातन चरित्र है, उसके साथ गहराई से अब हमारे कॉलेजेस को काम करना पड़ेगा। मैं प्रोफेसर डीके सिंह साहब से खास आग्रह करता हूँ, वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और 50वां साल स्वर्णिम वर्ष होता है। स्वर्णिम वर्ष का मतलब होता है, जब हम दौड़ रहे हों, तो एक दौड़ के बाद थोड़ी देर खड़े होके जरा सांस लेके सोचें कि हमारी जो दौड़ की गति है, उसमें हम अपनी ऊर्जा को छीन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारी ऊर्जा छीन तो नहीं हो रही है। थोड़ी देर खड़े होकर उस ऊर्जा को जरा जान लें कि हमारी दौड़ में, जिस दौड़ में हम दौड़े जा रहे हैं, उसमें हमारी ऊर्जा और ज़्यादा हमें पुष्ट करने वाली बन रही है या क्षीण करने वाली बन रही है। तो प्रोफेसर साहब, ये आपका स्वर्णिम साल, ये आपकी स्वर्णिम जयंती तब मीनिंगफुल होगी जब आप अपनी इस दौड़ को रोककर थोड़े दिन बैठ के ये सोचें कि अब हमारा 50 साल पूरा हुआ, हमने एक जर्नी पूरी की, अब हमें एक नई जर्नी पूरी करनी है। और वो जो नई जर्नी होगी, वो नेचर के नरिशमेंट के लिए रसायन कैसे रोल प्ले कर सकती है। व्हाट इज द रोल ऑफ द नरिशमेंट ऑफ नेचर विद केमिस्ट्री। यदि आप इस सब्जेक्ट को लेके आगे करेंगे, तो ये जो हिस्ट्री है वो आपको याद करेगी कि भाई प्रोफेसर डीके सिंह जी ने अपनी स्वर्ण जयंती पर एक खास डायमेंशन केमिस्ट्री की शुरू की। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करते हुए आगे चलता हूँ। भाई, मेरे हाथ की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। मैं बार बार तुम्हें बोलूंगा तो फिर कैसे चलेगा। मैं जब हाथ ऊपर करूं तो आगे जाना है। चलो आगे। दोस्तों, हमें ये देखना होगा कि उस काल में हम पानी को कैसे देखते थे। पानी हमारे लिए क्या था। पानी जो है वो इस पूरे प्लेनेट का सृजन करने वाला था, इस पूरे प्लेनेट को बनाने वाला, इस पूरे प्लेनेट को चलाने वाला, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला।
इसलिए संस्कृत में बहुत स्मॉल शब्दों में यूज किया है। अपहा ब्रह्मास्मि, अपा माने जल, और ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? अरे यार, तुम लखनऊ के लोग हो तो संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है? तो तुम इतने बड़े केमिस्ट हो गए कि अपनी माँ को भूल गए संस्कृत को। जो माँ को भूल जाते हैं ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ते, ये समझ लेना। संस्कृत और हिंदी हमारी माँ है, हमारी मातृभाषा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपहा ब्रह्मास्मि, इसका मतलब क्या है? बहुत मिक्स बोल रहे हो तुम, एक बार बोल दो ना यार। हाँ, वेरी गुड, उस लड़की ने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अच्छा, शाबाश। जरा इसके नाम की ताली बजाओ एक बार सब। उसने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपहा ब्रह्मास्मि, मैं जल हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही इस ब्रह्मांड को बनाता हूं, मैं ही इस ब्रह्मांड को चलाता हूं। मेरे बिना ना ये ब्रह्मांड बन सकता और ना मेरे बिना ये ब्रह्मांड चल सकता। ये ज्ञान भारतीयों में था। तुम इस दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, किसी में भी, ये समझ, रसायन के बड़े से बड़े रासायनिक साइंटिस्ट आपको मिल जाएंगे, पर जल के बारे में ये दृष्टि देने वाला, रसायन शास्त्र का ये ज्ञान, असली ज्ञान, ये भारतीय विद्या में ही संभव है, इस आधुनिक शिक्षा में संभव नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपकी आधुनिक शिक्षा है, इस आधुनिक शिक्षा में हम जरा भारतीय ज्ञान तंत्र को समग्रता से जोड़कर देखना शुरू करें। यदि हमने ये जोड़कर देखना शुरू किया, प्रोफेसर साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीते जी हम दुनिया के गुरु बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगे। आप ये मत सोचना कि मैं एक छोटे कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, मैं एक छोटी सी जगह काम करूंगा तो क्या होगा, दुनिया के गुरु बन सकते हैं क्या? गुरु बनने का रास्ता छोटी जगह से ही निकलता है, बड़ी जगह से नहीं निकलता। इसलिए हमें यदि रसायन शास्त्र में सचमुच इस दुनिया को नया रास्ता दिखाना है, तो अब ये टाइम है। और आपके कॉलेज का टाइम खास है, क्योंकि आपके कॉलेज ने 50 साल की हिस्ट्री पूरी की है। तो ऐसे वक्त पे आप ऑथेंटिकली बोल सकते हैं कि अब हम थोड़ा रसायन के बारे में एक नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे। और वो नया नजरिया होगा, रसायन को दोबारा से प्रकृति के रक्षण, संरक्षण और पोषण के कामों के साथ जोड़कर रसायन में रिसर्च करना, शोध करना और उस रास्ते को पकड़ना। अभी जो है रसायन केवल लाभ के रास्ते पर चल रही है। अब हम रसायन में जो भी कुछ करते हैं, वो केवल प्रॉफिट के लिए करते हैं। वो बायोकेमिस्ट्री में करें, वो केमिस्ट्री में करें, वो फार्माकोलॉजी में करें, जहां भी जितने सारे काम हैं, वो केवल और केवल लाभ के लिए हैं। जरा आज आपका कॉलेज यदि ये संकल्प ले सके कि हम लाभ के साथ शुभ के लिए भी केमिस्ट्री काम करेगी। गोयल साहब, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? या मैं भाषण दे के, प्रवचन दे के जा रहा हूं? ठीक कह रहा हूं ना कि जब हमें कोई एक अच्छा काम करना है, तो भाई अपने को एक इतना अच्छा अवसर, स्वर्णिम वर्ष बनाना है, तो कुछ थोड़ा स्वर्णिम निर्णय लेने का भाव हमें लेके जाना चाहिए। इसलिए हमें यदि देखना है तो फिर थोड़ा वाटर केमिस्ट्री को जानने की जरूरत है। यदि हम वाटर केमिस्ट्री को अपना एंट्री पॉइंट बनाते हैं इस स्वर्णिम वर्ष में, तो केमिस्ट्री के और जितनी डायमेंशंस हैं, बहुत आपके अच्छे विद्यार्थी, अच्छी फैकल्टी ये काम करेगी। लेकिन पानी की केमिस्ट्री को जानना, समझना, इससे हम इस प्लैनेट के सृजन को ठीक से समझ सकते हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया बिन पानी होके उजड़ रही है, जिसमें से 40% कंट्री दुनिया की क्लाइमेट चेंज के कारण क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बनकर जब भी यूरोप के शहरों में जाते हैं, तो यूरोपियन उनको क्लाइमेट रिफ्यूजी कहते हैं। और ये क्लाइमेट का संबंध केमिस्ट्री के साथ है कि नहीं?
मेरा सवाल समझ में नहीं आया। मैंने पूछा कि क्लाइमेट का रिश्ता केमिस्ट्री से है कि नहीं है। तो हमें यह समझना होगा कि अब हम कैसे इस केमिस्ट्री का रूप थोड़ा बदलें और इस केमिस्ट्री को कैसे एक नेचुरल केमिस्ट्री में, एक रिजुविनेशन की केमिस्ट्री में, एक रिनोवेशन की केमिस्ट्री में कैसे लेके जाएं और उसकी डिजाइनिंग कैसे करें। वो आपका डिपार्टमेंट, आपका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट यदि इनिशिएट करेगा तो दूसरे डिपार्टमेंट्स के मुकाबले आपके लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं। तो मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में मैंने 127 देशों की यात्रा 1 बार से लेके 5 बार की है। मैं तुम्हें एक खुशखबरी बताना चाहता हूं कि अभी केवल हिंदुस्तान के लोगों को जब वो यूरोप या अमेरिका में जाते हैं तो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं बोला जाता, जबकि हमारा कलर अफ्रीकन्स के कलर से बहुत अलग नहीं है। पर इंडियंस को अभी भी वो कामधेनु गाय की तरह देखते हैं कि ये आते हैं तो हमारे लिए कमा के दे के जाते हैं। तो हम इंडियंस जो हैं यूरोपियंस के लिए और अमेरिकन्स के लिए कामधेनु गाय हैं। उनको कमा के कितना टैक्स दे के आते हैं, कितना कुछ दे के आते हैं, इसलिए वो हमें कभी भी क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं कहते और हमें हेट नहीं करते। पर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि वो भारतीयों को कब तक क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं कहेंगे? मुझे कोई इस सवाल का जवाब देगा कि भारतीय कब तक क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं बनेंगे? सुनो जरा, देखो जवाब दिया उन्होंने, बहुत अच्छा जवाब दिया है, पर तुमने ध्यान से नहीं सुना। एक बार और बोल दो। और फायदा पहुंचाने के लायक हम तब तक ही रह सकते हैं जब तक हमारे देश में हम मजबूती के साथ आत्मनिर्भर बन के विदेश जाएंगे, तब तक हम उनके फायदे के लोग हैं। जिस दिन हम बेपानी होकर जाएंगे उस दिन हम उनके ऊपर लायबिलिटी होंगे। इसलिए इस अंतर को समझ लेना चाहिए। जरा इनके नाम की भी ताली तो बजाओ यार। मैं जबरदस्ती तो नहीं बजवा रहा हूं आपसे ताली, आपको अपने आप बजाना चाहिए। यदि कोई ठीक आंसर दे रहा है मेरे सवाल का, जब भी कोई ठीक आंसर दे और आपको लगे कि ये आंसर ठीक है तो बिना कहे ताली बजाइए। कम से कम किसी आदमी ने खड़े होकर आपके सवाल का जवाब दिया है तो हमें उसको उतना सम्मान तो उस हाउस में करना ही चाहिए कि नहीं? और भारतीय लोग तो सम्मान करते हैं अच्छे कामों का। गुड, चलिए। तो देखो, यदि हम क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं बनना चाहते तो इंडिया की नदियों को अविरल निर्मल बनकर बहने दे और इंडिया में कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट करेंगे तो भारत पानीदार देश रहेगा। वो बेपानी होकर कभी उजड़ेगा नहीं और क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बनेगा नहीं। तब तक हम इस दुनिया के लिए हमेशा कुछ अच्छा करके उसको देते रहेंगे, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा। इसलिए हमें यदि अच्छा बनना है तो अपनी धरती को बेपानी नहीं होने देना। आज की तारीख में 17 राज्य और 365 जिले वाटर स्केर्सिटी और पीने के लायक पानी नहीं है। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर को एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी से पानी निकाल लिया है। जितना पानी हम धरती में रिचार्ज कर रहे हैं उससे ज्यादा डिस्चार्ज कर रहे हैं। और जब डिस्चार्ज ज्यादा करते हैं और रिचार्ज नहीं करते तो मेरी माँ धरती का पेट खाली हो जाता है, वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। और जिस देश का रियल रिजर्व बैंक वाटर बैंक हो उसकी आरबीआई की करेंसी की वैल्यू तभी तक रहेगी जब तक तुम्हारे वाटर बैंक में पानी होगा। यदि आपका वाटर बैंक खाली होगा तो फिर आपकी आरबीआई करेंसी रुपीज की वैल्यू नहीं बचेगी। मेरी बात कुछ समझ में आई? सिंपल आंसर है ये।
यदि उस वैल्यू को ठीक रखना है तो फिर आपके धरती के पेट को पानी से भर के रखना होगा, तभी आपकी नदियां बहेंगी। और ये मैप मेरा नहीं है, ये नीति आयोग ने वर्ल्ड रिसोर्स सेंटर से इंस्टीट्यूट से बनवाया है। ये राजेंद्र सिंह नहीं बोल रहा है, आपकी सरकार बोल रही है। और ये काम तब तक संभव है जब तक हम जो हमारे अंडरग्राउंड एक्यूफर्स हैं और ये जो उसके फ्रैक्चर्स हैं, उस फ्रैक्चर्स के कैरेक्टर को समझने वाली जियो हाइड्रो साइंस और उसके ऊपर यूज होने वाली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों को इंटीग्रेट नहीं करेंगे। साइंस तुम्हारी केमिस्ट्री के बिना नहीं समझी जा सकती। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इन सब को इंटीग्रेट करके यदि हम अपने अंडरग्राउंड एक्यूफर को समझ के पानी को ऊपर, बारिश का जो पानी है उसको ठीक करके कंजर्व करेंगे। देखो मेरा डैम नंबर 1 जो मैंने बनाया वो ऐसी जगह बनाया जहां केवल कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे और वर्टिकल फ्रैक्चर्स का जो रिचार्ज था वो मेरी नदी में आया। जब सरकार कोई डैम बनाती है तो सबसे पहले उस नदी की हत्या कर देती है। नदी ऐसे बह रही है और उसके सामने इस तरह का डैम बन जाता है और जो उसके अंदर के नीचे के फ्रैक्चर्स हैं उनको मरकरी से भर के नीचे बिल्कुल सीपेज रोक देते हैं। मैंने 15,800 डैम बनाए हैं बिना किसी सरकार की मदद के, पर मैंने कभी भी अंडरग्राउंड किसी भी अंडरग्राउंड एक्वीफर को रिचार्ज करने से नहीं रोका। सरकारी इंजीनियर जब डैम डिजाइन करता है तो सबसे पहले वो रिचार्ज जो नीचे का उसका वो है ना, उसको रोकता है। मैंने नहीं रोका। मैंने एक भी डैम में नीचे के जो फ्लो हैं, धरती के अंदर के फ्लो, उनको वो जैसे नेचुरल थे पहले के पहले वैसे रहे। मुझे बहुत इंजीनियर दोस्तों ने कहा, वो मेरे दोस्त ही थे, ऐसा दुश्मन नहीं थे, उन्होंने कहा भाई जी कभी आपका ये डैम टूट जाएगा तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। मैंने कहा जब टूटेगा जब देख लेंगे यार, अभी तो हम 85 साल हुए। जैसे तुम्हारे कॉलेज को 50 साल हुए ऐसे मेरे भी 50 साल पूरे हुए अब। तो मैंने उसको कहा कि देखो यार अभी तो मैं 70 साल का हुआ हूं, मुझे कम से कम 30 साल और जीना है, तो 30 साल तो अभी हम और देखेंगे। अभी तक तो कोई टूटा नहीं, अगले 30 सालों में कितने टूटेंगे उनको देख लेंगे हम, पर हम रखेंगे ऐसे ही। क्योंकि जब आप साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को इंटीग्रेट करके काम करते हैं तो उसके अंदर एक सनातनता आती है। ये जो नेचुरल फॉर्मेशन है ये हमेशा इंटीग्रेशन से मूव करता है, और ये जो हमारी एजुकेशन है ये हमेशा डिसइंटीग्रेट करके पढ़ाती है हमें। एजुकेशन में डिसइंटीग्रेशन है, विद्या में इंटीग्रेशन है। तो जो आज का सब्जेक्ट है आपकी इस कॉन्फ्रेंस का, बेसिकली यदि 2 शब्दों में कहें तो ये विद्या का भारतीय ज्ञानतंत्र है। इंटीग्रेशन हमें जोड़ता है और डिसइंटीग्रेशन हमें तोड़ता है। तो हम जब भी कुछ नई शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमेशा उसको डिसइंटीग्रेट करके लास्ट पॉइंट पे लाके फिर उसमें से डेटा, कैलकुलेशन, इक्वेशन और फिर उसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल बना के पीएचडी रिसर्च कराते हैं। वो तरीका जो है वो डिसइंटीग्रेशन का है। हमें डिसइंटीग्रेशन सर सस्टेनेबिलिटी से दूर लेके जाती है और इंटीग्रेशन हमें हमेशा सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके आती है। इसलिए हमारे बांध 15,800 में से आज तक एक बांध नहीं टूटा। जबकि इंजीनियरों को हमेशा ये डर रहता है कि यार वो जो नीचे के फ्लो हैं वो सब सरफेस में फ्लो होते हैं ना, डैम तो ऊपर है और उसके नीचे जो एक्यूफर्स में फ्लो होते हैं उसमें से कभी यदि सीपेज बढ़ गया तो बांध टूट जाएगा। इंजीनियर हमेशा डरते रहते हैं, पर मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मैंने सोचा कि यार नेचर के फ्लो को समझकर मैं बांध कर रहा हूं, बना रहा हूं, और उसके जो कंटूर्स हैं उन कंटूर्स को रेस्पेक्ट करके डिजाइन कर रहा हूं, तो ये नेचर अपने खिलाफ काम कभी नहीं करेगी। और सचमुच इन 50 सालों में मैं फेल नहीं हुआ। नेक्स्ट, ये देखो चंबल।
आप चंबल को कैसे जानते हैं, जरा कोई बताएगा? हाँ, चंबल के बागियों की कहानी, आप केवल उसको चंबल बागी क्षेत्र जानते हैं, पर आपने कभी ये नहीं जाना कि चंबल के लोग बागी बने क्यों। चंबल के लोगों को बागी बनने के केवल 2 कारण रहे हैं। एक कारण तो ये कि यूपी का जो वो हिस्सा है और मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, इन दोनों में, दोनों क्षेत्रों की जो मिट्टी है वो बहुत फर्जाइल है, तो पानी के बूंदों के साथ बह के रिबाइंस बना देती है। और जो राजस्थान का हिस्सा है वो रेड स्टोन है, धौलपुर, करौली पूरा, वहां की जो मिट्टी है वो तो बह जाती है और नीचे लाल पत्थर रहता है। तो जब लोगों के पास जीने के लिए कुछ नहीं होता तो मरता कोई क्या ना करता। जब वो मर रहा है तो दूसरों को मारने के लिए वो ज्यादा विचार नहीं करता, तो फिर वो बंदूकें उठाता है, लूटपाट करता है। और दूसरा एक बड़ा कारण है कि जातिगत अपमान के कारण भी कुछ लोग बागी बने, जैसे वो फूलन देवी, वो अपमान के कारण बनी। तो कुछ अपमान के कारण बने और कुछ जीवन को चलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए वो बागी बने। ये बात मुझे बहुत देर से समझ में आई, मुझे 40 साल पहले समझ में आई। काम तो हमने 50 साल पहले शुरू किया था, पर ये बात मुझे कि चंबल के बागी इसलिए बने थे। और 50 साल पहले, बल्कि 52 साल पहले 1972 में जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे ने, जो बड़े नामी डकैत थे, उनका सबका आत्मसमर्पण एक सेलिब्रेशन करके, समर्पण सेलिब्रेशन, आत्मसमर्पण करा के उनकी बंदूकें छुड़वाई थी 252 लोगों की, 252 डाकुओं की, जिसमें मान सिंह, मोहर सिंह, तहसीलदार सिंह, ये सब बड़े लोग थे। लेकिन बागी केवल बड़े नहीं होते, खतरनाक बागी सबसे छोटे होते हैं, जो वहां की भैंस चोरी करते हैं, गाय चोरी करते हैं, बकरी चोरी करते हैं और फिर लूटपाट करते हैं, और कोई रास्ते पे चल रहा हो तो उसके कपड़े उतरवा लेते हैं। वो संख्या बहुत बड़ी थी। और इन लोगों की सारी नर्सरी हमारे राजस्थान के करौली जिले में सरमथुरा और धौलपुर में थी, और इस इलाके में मैं काम करता था। तो हमने किसी को ये नहीं कहा कि तुम बंदूक छोड़ दो, हमने सबसे पहले इनकी खेती पर पानी के लिए बांध बनाए, जोहड़ बनाए और इनकी खेती को पानी दिया, जमीन को। और फिर हमारे यहाँ जो ये डाकू हैं, इनकी शादी कोई करता नहीं है, इनको कोई देता नहीं है लड़की, तो ये लूटपाट करके बंदूक से डरा के लड़कियों को उठा के लाते थे, फिर उसको अपनी पत्नी बनाते थे। तो हमने कहा यार ये तो बड़ा गलत काम है। पर जो भी उनके, और फिर ये उन पत्नियों को भूल जाते थे, भूल के अपने बड़े डकैत हो जाते थे, चले जाते थे। तो ये बेचारी अकेली घर में रहती थी। तो जब हम उस इलाके में पानी का काम कर रहे थे, तो हमारे इलाके की, अलवर जिले की एक लड़की थी भगवती, वो चौंडकिया गांव में करौली जिले में ब्याही थी। उसको पता चल गया कि उनका गांव था भावता, हमारे अलवर में, जहां हम 50 साल पहले शुरू किए थे। तो उसने कहा कि थे ना, माँ का गांव में खेती होवे लागी, माँ की माँ के खेती होवे लागी, और माँ का तो यहाँ 150 बीघा जमीन छे, और उमें पानी को नहीं, तो माँ के पानी हो जा तो खेती होवे लागे। तो हमने कहा भाई हमारे पास पैसे नहीं है। उसने कहा माँ की माँ के भी तो बिना पैसे करवाया था ने काम, तुम्हारे भी करवा दे। तो मैंने भगवती से कहा कि देखो हम काम वहां करते हैं जहां लोग खुद तैयार हों। जब वो खुद होके तैयार काम करने लगते हैं तो फिर हम किसी को पकड़ के कहते हैं भाई इसको जरा मदद कर दे, तो मदद कर देता है। तो भगवती खड़ी हो गई और भगवती ने कहा हाँ मैं आज से ही काम करने को तैयार हूं, जितना मैं कर सकूंगी मैं करूंगी, बाकी तू मदद करा दे। तो ये सबसे पहला केस था भगवती, और उसके पति का नाम था निर्भय सिंह। जरा गूगल पे पढ़ना निर्भय सिंह को। भगवती ने सबसे पहले अपना खेत पे पानी का काम किया, और जब खेत पे मिट्टी नहीं थी तो ऊपर की बारिश के दिनों में जंगल से जो पानी आता था उसमें थोड़ी मिट्टी और थोड़े पत्ते आ गए थे। तो ये बड़ी होशियार थी भगवती,
इसने उसमें सरसों के बीज बखेर दिए और सरसों हुई। तो सबसे पहले सरसों की फसल बेच के वो अपने पति के लिए एक साफा 5 रंग का और एक सफेद धोती और कुर्ते का कपड़ा खरीद के लाई। इसका पति 7 साल से इसको मिलने नहीं आया था, लेकिन पड़ोस में ही एक गांव था खिजूरा। खिजूरा गांव का एक डाकू उसके गैंग में था, निर्भय सिंह के। तो उससे कहा कि उसे बता दीजो, मुझे देखना चाहे छे तो मकर संक्रांति के दिन सुबह 4 बजे तक आ जा, नहीं तो उसके बाद मैं को नहीं दिखूंगी। उसने जाके कह दिया उसको। अब ये दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं, भूल ही गया था वो अपनी पत्नी को, सबको भूल गया था। तो वो अपने पूरे, उसके गैंग में 80 आदमी थे, वो 80 आदमियों का गैंग लेके चला गया मकर संक्रांति के दिन। और भगवती ने मुझे भी बुला लिया था। तो मैं गया तो मैंने देखा उसका घर तो पूरा डाकुओं से घिरा हुआ है, पर हम जैसे को किसका डर। मैं उन डाकुओं में घुस गया और भगवती ने मुझे देखा, यूं इशारा करा और मैं खाट पे बैठ गया। एक खाट पड़ी थी और वो तो 2 मिनट के अंदर एक थाली में अपने पति का साफा और एक सफेद कुर्ता और धोती, और मुझे हाथ में वो प्लेट दे दी उसने और यूं इशारा किया। बोली नहीं वो एक शब्द भी, यूं इशारा किया। तो जब उसने ऐसे इशारा किया मैं समझ गया कि ये इसे देने को कह रही है। तो उसमें हल्दी थी और चावल थे। तो मैंने हल्दी चावल में थोड़ा पानी डाला और जिसकी तरफ उसने इशारा किया था उसके मैंने एक टीका किया और फिर वो जो साफा था वो साफा बांध दिया। दोस्तों, इस साफा बांधने का असर क्या हुआ, इसकी कहानी तुमने कभी ऐसी, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। केवल मैंने टीका किया उसको और साफा बांधा और उसकी आंखों में तो इतने लंबे लंबे आंसू आ गए। और उसने, पता नहीं उसको क्या भाव आया, वो जो उसके राइट हैंड में पचनाली थी, उस पचनाली को उसने लेफ्ट में लिया और परात लेके और वो जो उसको पहले तो यूं घुमाया और घुमा के अपने गैंग के ऊपर फेंक दिया और बोला, अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, अब तो मैं इसके साथ रहूंगा। किसके साथ? नाम लो, किसके साथ? भगवती के साथ। बोला, जिसने मेरा 7 साल इंतजार किया हो, जिसने मेरा 7 साल इंतजार किया हो, उससे ज्यादा विश्वसनीय ये बंदूक नहीं है। अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगा बंदूक के साथ, अब तो मैं उसके साथ रहूंगा। दोस्तों, ये घटना जो थी मेरे जीवन में इतनी चमत्कारी थी। मैं इस घटना का रिजल्ट तब नहीं जानता था कि क्या होगा। फिर उसके गैंग के लोगों ने कहा कि तुझे पुलिस जिंदा नहीं रहने देगी, 4-5 दिन में मार मुड़ देगी, यहाँ खत्म करेगी। तो बोला, जिसने मेरा टीका कराया वो क्या करेगा? कुछ नहीं कहा उसने कहा जिसने मेरा टीका कराया वो क्या करेगा, अब तुम जाओ, अब जिसने मेरा टीका कराया वो देख लेगा, तुम अब मेरे बारे में मत सोचना। अब सारी गेंद मेरे ऊपर आ गई। तो उस जमाने में हमारा डीजीपी होता था शांतनु कुमार, वो बड़ा ईमानदार आदमी था। मैंने कहा, भाई ऐसा ऐसा हो गया। बोला, राजस्थान के जो पॉलिटिशियन है ना, ये बड़े बदमाश हैं, ये इसको भुना लेंगे। तुम यदि एक मेरी मदद करो कि इसको किसी मीडिया को पता मत करने दो, 2 साल इस बात को दबा लोगे तो मैं थारा आगे का सारे चंबल को डाकू फ्री कर दूंगा। पर ये जो मीडिया वाले और पॉलिटिशियन हैं, ये मिलके सब खेल बिगाड़ देते हैं। तो मैंने कहा, यार मीडिया को कैसे पता चलेगा, ये बात तो मेरी और तेरे बीच में है, वहां मीडिया को जाता ही नहीं है। तो उन्हें तुरंत आरसी मित्तल, उन दिनों चीफ, वो हमारा एसपी होता था, उसको बुलाया और उसको कहा कि देखो, राजेंद्र सिंह को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ जी जानता हूँ। मैंने जब मैं आईपीएस की तैयारी कर रहा था तो कंपटीशन में इनका पढ़ा था, वाटरमैन का, तो मैं इनको खूब जानता हूँ। तो देखो, ये काम के लिए आए हैं, एक आदमी को जिनको तुम्हारी पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई, 5 लाख का इनाम था उसके ऊपर, और इसने तो पकड़ सब है, तो तुम उसका करो काम ठीक, इसको मदद करो। तो उन्होंने कहा, आप बताओ कैसे करना। उन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तुम अपने मन से करो। तो उन्होंने कहा, 90 दिन जेल में रहना पड़ेगा उसको, 90 दिन में मैं सारे केस निपटा दूंगा। बस इतनी सी बात हुई हमारी, और उसने उसको अरेस्ट करके 90 दिन जेल में रख के जितने भी सारे मुकदमे थे, जुडिशरी में सारी रिपोर्ट ठीक से करके सारे मुकदमे खत्म कर दिए 90 दिन में, 90 डेज में। और वो निर्भय सिंह जो पहले गाता था, क्या गाता था?
मैं डरता था, डराता था, मरता नहीं था, मारता था। अब मैं समझदार हो गया हूं, पानीदार हो गया हूं, इज्जतदार हो गया हूं, मालदार हो गया हूं। जिसको मेरे जैसा बनना है अपनी बंदूकें छोड़ो, आओ पानीदार बनते हैं, खेती का काम करेंगे। दोस्तों, मुझे मालूम नहीं है तुम्हारी कौन सी केमिस्ट्री में जो जोड़ रखती है, वो तो प्रिंसिपल साहब बताएंगे, पर ये भी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का परिणाम ये हुआ कि 3,500 लोग जो केवल लूटपाट और मार काट करते थे, बंदूकें 40 साल में छोड़ के अब बागी से किसानी करने लगे हैं। अब बागी से बंदूकें छोड़कर किसान बन गए हैं और अब ये समझदार, इज्जतदार, मालदार हो गए हैं। मैं आपके प्रिंसिपल साहब से कह रहा हूं कि आप लोगों को अपनी स्वर्ण जयंती में केमिस्ट्री ठीक से समझनी है, पानी की केमिस्ट्री ठीक से समझनी है, मिट्टी की केमिस्ट्री ठीक से समझनी है, पेड़ों की केमिस्ट्री ठीक से समझनी है और ह्यूमन बीइंग के साथ इस रिलेशनशिप को ठीक से समझना है। तो 20-30 विद्यार्थियों के साथ 2 प्रोफेसरों को जरा चंबल में देखने भेज दो कि ये 3,500 लोगों ने बंदूकें कैसे छोड़ी और बंदूकें छोड़ के वो कैसे देखो, जब तक तुम धरती पे देखोगे नहीं ना बदलाव। यहां राजेंद्र सिंह आया, भाषण देके चला गया, इसमें कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, कुछ पता नहीं। और इन पढ़े लिखे लोगों के मन में तो हमेशा सवाल ही उठते रहते हैं। उनको कभी भी ना कोई फेथ होती है, ना कोई ट्रस्ट होता है, ना कॉन्फिडेंस होता है, बस क्वेश्चन होते हैं। तो जब तुम आंखों से देखोगे ना, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा कि हमारी केमिस्ट्री का रोल इस नेचर को रिवाइव करने में, नेचर को रिजुनेट करने में, सोशल केमिस्ट्री में कितना है, नेचुरल केमिस्ट्री में कितना है, वाटर केमिस्ट्री में कितना रोल है, ये समझ में आएगा। इसलिए प्रिंसिपल साहब, मैंने तो बहुत प्यार से आपको आज इतना ही कहा कि इन बच्चों को कुछ को 5-6 दिन का एक यात्रा करवा के, और यहाँ से लखनऊ से बिल्कुल ट्रेन जाती है वहाँ सीधी धौलपुर, वहाँ भेज दीजिए, फिर आगे मैं संभाल लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये देखेंगे, देखो ये नदी देखो जल्दी से, ये कुआं जिसमें बच्चे नहा रहे हैं 70 फीट खोदा था गहरा, एक बूंद पानी नहीं था। अभी देखो पानी बह रहा है ऊपर से, और 2 ट्यूबवेल चल रहे हैं, पानी निकाल रहे कुएं में से, पानी नहीं टूट रहा। तो बताओ इस कुएं में पानी कहां से आ गया? इस कुएं में पानी कहां से आया बताओ? कहां से आया है? बोलो ना यार, क्यों शर्माते हो? कहां से आया? जमीन से आया, ये बात तो ठीक है, पर जमीन में कहां से आया? जमीन में कहां से आया? भाई हाँ, हमने छोटे छोटे ऐसी जगह बांध बनाए जहां पर कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर थे। कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर के ऊपर जब आप डैम बनाते हैं तो बारिश का पानी उसमें रुक जाता है और फिर वो पानी पेनिट्रेट होके धरती के पेट में चला जाता है और धरती का पेट पानी भरने के साथ साथ पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। तो ये जो कुआं है जिसमें बच्चे नहा रहे हैं, लाल पत्थर है देखो चारों तरफ, और अब इसमें से 2 इंजन चलने के बावजूद भी पानी अपने आप बह रहा, टूट नहीं रहा। वो इसलिए हुआ कि डिस्चार्ज से ज्यादा रिचार्ज हो गया है। जब डिस्चार्ज से ज्यादा रिचार्ज होता है तो वहां का जो सरप्लस फ्लो है वो धरती के ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, ये पानी का काम बहुत सस्ता है। 2 रुपए 52 पैसे में 1000 लीटर पानी, कितना? इससे सस्ता कोई और काम होगा? तो आओ तुम चंबल आके तुम भी करके आओ 1000 लीटर का। लेकिन ये काम
लेकिन ये काम केवल इंजीनियरिंग से नहीं होगा, ये साइंस के बिना नहीं होगा। आपको इसकी साइंस समझनी पड़ेगी, जियो हाइड्रो साइंस और जियो हाइड्रो साइंस विद वाटर केमिस्ट्री। चलो 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 चलो, उसकी कंडीशन और टाइपोलॉजी ये समझे बिना आप इस काम को आगे नहीं ले जा सकते। दोस्तों, मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूं। ये गढ़सीसर ताल है। गढ़सीसर ताल जैसलमेर में बना था 700 साल पहले। 700 साल पहले जब ये ताल बना था, तब उस जमाने में तालाब को बनाते वक्त एक नीचे हाथी बनाया। हाथी ऐसी जगह बनाया कि जब हाथी डूब जाए तो उस तालाब में 1500 ऊंटों के लिए 15 लोटा पानी, लोटा थोड़ा लीटर से छोटा होता है, तो उस जमाने में लोटा था, लीटर नहीं था, 15 लोटा पानी एक ऊंट के लिए और 10 लोटा पानी एक व्यापारी के लिए। रोजाना जैसलमेर के रास्ते काबुल, कंधार, काजिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार तक 1500 ऊंट और 200 व्यापारी व्यापार करने जाते थे। जरा यहां बैठे हुए साइंटिस्ट हो, तुम बताओ, जो दुनिया का सबसे कम बारिश की जगह है उसका नाम है जैसलमेर। उस जैसलमेर में भारतीय वैज्ञानिकों ने और इंजीनियरों ने मिलकर, तब ये वैज्ञानिक और इंजीनियर शब्द नहीं थे उस जमाने में जब ये बना, ये तो अब नए शब्द हैं, इन्होंने कैसे ऐसा नापतोल का डिसिप्लिन्ड सिस्टम बनाया था कि यहां से जाने वाले ऊंट और व्यापारी को साल भर पानी पीने के लिए मिल सके। ये भारत का ज्ञान तंत्र था, एक तरफ जल का संरक्षण करना और दूसरी तरफ जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाकर कम पानी में अपने को ज्यादा दिन जिंदा रखना। ये जो विज्ञान है, ये जो समझ है, ये हमारी व्यवहारिक समझ है, ये हमारी प्रैक्टिकल समझ है। इसके कारण हम लोग पानीदार थे। और ये सारे अनपढ़ इंजीनियर हैं, इनमें एक भी पढ़ा लिखा नहीं है। अरे तुम लोग बड़े फॉर्चुनेट हो, नेशनल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला है तुम्हें। इनको एक प्राइमरी स्कूल में भी जाने का मौका नहीं मिला। और ये वो इंजीनियर हैं, जब के.आर. नारायणन साहब राष्ट्रपति थे तब इन इंजीनियरों ने आके राष्ट्रपति भवन में दो जोहड़ बनाए, एक डालीपत्ती बाग में और एक मुगल गार्डन में। एक दिन ही किसी स्कूल में नहीं जा सके। अब तुम देख लो, तुम तो नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हो। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो तुम पढ़ रहे हो, इस पढ़ाई को व्यवहार में लाना शुरू करो। जब तक ये पढ़ाई व्यवहार में नहीं आएगी, तब तक तुम्हारी पढ़ाई केवल तुम्हारे मस्तिष्क की खुराक बन के रह जाएगी। ये सारे डैम डिजाइन इन्होंने ऐसे किए कि जहां स्टीप स्लोप थे पहाड़ियों के ऊपर अरावली में, वहां कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम बनाए, जिससे पानी ऊपर से वेग से आए तो ये टूटे नहीं, पानी का दबाव बढ़ जाए। और जहां नेचुरल डिप्रेशन था वहां कॉनकेव डिजाइन के डैम बनाए, और जहां जेंटल स्लोप था वहां सीधे बनाए कि नीचे पानी निकल जाए और ऊपर जब पानी निकाल के बारिश के बाद खेती हो जाए। तो समाज अभी भी हिंदुस्तान का जो समाज है उसमें एक वैदिक ज्ञान और समझ है। 15,800 बांध जोहड़ों ने 2.5 लाख वाटर पॉइंट्स को रिचार्ज किया, और 2.5 लाख वाटर पॉइंट्स के रिचार्ज होने से 12.5 लाख युवाओं को जो डिस्प्लेस होके शहर चले गए थे, वो वापस आके अब अपनी जमीन पर खेती करने लगे 19 जिलों में। तुम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो कि जब डिस्चार्ज होता है तब अंडरग्राउंड एक्यूफर खाली हो जाते हैं, और जब इस स्लाइड में देखोगे रिचार्ज हो जाता है तो अंडरग्राउंड एक्यूफर भर जाते हैं, और फिर सूखी हुई मरी हुई नदी पेरेनियल होकर, शुद्ध सदा नीरा होकर बहने लगती है। जरा देखो इस कॉन्ट्रैक्ट्स को देखो, ये 25 जनवरी का फोटो है ऊपर वाला, और नीचे वाला भी 25 जनवरी का है, पर 15 साल पहले और 15 साल बाद का है। पहाड़ी देखो, और ये उसी जगह के लिए वो फोटो हैं, एक ही जगह के, पर 15 साल में जो हरियाली आई। धरती के बुखार का इलाज धरती के ऊपर की हरियाली है,
और बुखार के कारण जो मौसम का मिजाज बिगड़ जाता है, जिसको तुम्हारे प्रोफेसर साहब क्लाइमेट चेंज कहते हैं, हमारे लखनऊ के किसान लोग कहते हैं धरती का मिजाज बिगड़ गयो। जिस दिन सो धरती का मिजाज बिगड़ा है ना, तो अब वर्षा का पता ही को नहीं चले, पहले हुए पीछे हुए बेटाइम हुए। हमारे राजस्थान के लोग बहुत आसानी से बोलते हैं कि जब से धरती को बुखार चढ़ा है, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तब से धरती मौसम का मिजाज बिगड़ गया, उसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। तो जो किसान लोग हैं वो इस विज्ञान को ज्यादा गहराई से प्रैक्टिकली समझते हैं। तो लेकिन उन्होंने, ये नदी अब पूरे साल बहती है और जो वेस्टलैंड थी उसमें सरसों हो रही है। अच्छा तुम ये बताओ कि ये दोनों फोटो जनवरी के महीने के हैं, इस बात का क्या एविडेंस है जी? सरसों। अरे भाई बहन जी के नाम की ताली बजाओ। जनवरी के आखिरी महीने में ही राजस्थान पे फ्लावरिंग होती है। वाकई इनको तो 100 में से 100 नंबर देने चाहिए। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। ये देखो, वो नदी पहले ऐसी थी, अभी ये नदी ऐसी हो गई, बह रही है। जैसे तुम क्रीम लगाते हो, पाउडर लगाते हो चेहरे को बदलने के लिए, ऐसे धरती को क्रीम पाउडर नहीं चाहिए, उसको केवल हरियाली चाहिए। देखो कितना सुंदर चेहरा हो गया उसका, और ऊपर वाला चेहरा देखो। तो धरती का चेहरा बड़ी जल्दी से बदलता है। नेचर के अंदर वो स्ट्रेंथ है कि वो अपनी ब्यूटी को, यदि आपने थोड़ा भी उसको प्यार करना शुरू किया, उसकी ब्यूटी आ जाती है। मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, पर मैं अब जल्दी खत्म कर रहा हूं। देखो 2015 में जब मुझे वाटर नोबेल प्राइज अनाउंस हुआ, तो पूरी दुनिया से 1700 लोगों की पिटीशन मेरे खिलाफ आई। उन्हें कहा राजेंद्र सिंह तो ना वाटर साइंटिस्ट है, और ये अवार्ड केवल प्रोफेसरों को ही मिलता है, साइंटिस्टों को। राजेंद्र सिंह तो साइंटिस्ट था नहीं, वो तो आयुर्वेद का आदमी था। तो सब ने मेरे खिलाफ लिखा कि आयुर्वेद के आदमी को ये पुरस्कार, हमारे लिए एक ही तो अवार्ड है, ये इनको कैसे मिला? तो फिर भारत सरकार ने एक कमीशन बनाया। CS झा साहब उन दिनों हमारे रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद के डायरेक्टर जनरल होते थे, उनके उसमें उन्होंने फिर इसको रिसर्च करा के ये बताया कि ये रियल साइंस है। इस साइंस ने, ये जो हरियाली थी, मिट्टी में जब नमी आई तो हरियाली बढ़ी, और जब हरियाली बढ़ी तो हरियाली ने एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करके यहाँ की क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन की प्रोसेस को तेज किया। अब यहाँ अच्छी बारिश होने लगी और खेती होने लगी। तो तब तो इसका मतलब क्या कि अथॉरिटी अभी तुम ही हो। ये जो कॉलेज में पढ़ते हैं ना, ये पढ़ाई अथॉरिटी है। ये अवार्ड मुझे मिला, पर ये मेरे काम के लिए नहीं मिला, ये CS झा साहब की जो पढ़ाई थी उसकी रिपोर्ट के बाद मिला। तो अभी प्रिंसिपल साहब आप जो पढ़ाते हैं, अथॉरिटी बनाते हैं, काम करना भुला देते हैं इनको। अब ये काम वाम नहीं करते हैं, तो आप जरा स्ट्रिक्ट होके इनसे काम लेना भी शुरू करो। नेक्स्ट। ये काम छोटे गांव से शुरू करेंगे तो बड़ी गहरी समझ आपको आ जाएगी। चलो जल्दी, टाइम मैंने बस 3 मिनट में खत्म करता हूं। चलो जल्दी आगे। भारत में 84% पानी खेती में उपयोग होता है। उस पानी को क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ यदि इंटीग्रेट कर दे तो 40% पानी में हम उतनी पैदा ले सकते हैं जितनी अब 85% में लेते हैं। केवल छोटा सा परिवर्तन करना है, बट इस छोटे से परिवर्तन करने के लिए एक ज्ञान की जरूरत है, और वो ज्ञान है कि ये जो क्लाइमेट जिन कारणों से बदल रही है उसको समझना, रेन पैटर्न को हमारे एग्रीकल्चर के क्रॉप पैटर्न के साथ इंटीग्रेट करना। ये काम केमिस्ट्री का भी है। प्रिंसिपल साहब, एग्रीकल्चर का है लेकिन केमिस्ट्री का भी रोल है। ये इंटीग्रेटेड साइंस का है, जो आज की आपकी कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट है। यदि आपको इंटीग्रेशन करना है इस पूरी साइंस का, तो फिर जो आज हमारे सामने दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के कारण जो हमारे रेन पैटर्न बदल रहे हैं, उनको हमें अपने क्रॉप पैटर्न के साथ, यदि इंडिया में 90 एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन है, 90, इन 90 में सब में अलग अलग तरह के पैटर्न लाने पड़ेंगे। ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, मुझे मालूम नहीं आपकी साइंस कैसे करेगी, पर एक दिन तो ये काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट,
ये मेरे गुरुजी हैं, ये ऐसे गुरुजी हैं, इन्होंने मुझे 2 दिन में 2 विद्या वारिधि दी। विद्या वारिधि का मतलब समझते हो? पीएचडी, 2 पीएचडी। एक पीएचडी में तो उन्होंने मुझे चमड़े के चरस में बैठा के 25 सूखे कुएं सुबह 6 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक दिखाए। तो मेरी पीएचडी का वैलिडेशन 3 प्रोफेसरों ने नहीं किया, तो किसने किया? 25 कुओं ने। वो केवल मुझसे सवाल पूछते थे, कहीं देखा रहता न कुएं में? तो जिस कुएं में कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर होते थे वहां पर हरी पत्ती वाले पेड़ होते थे, और जहां अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते थे वहां पेड़ ही नहीं होते थे, वहां झाड़ियां होती थी। तो उसने मुझसे कम से कम 100 सवाल पूछे एक दिन में, और जब उसके सवालों का जवाब मिल गया तो उसने कहा हाँ अब तू धरती का पेट सीख गया, अब तुझे समझ आ गई। तो मेरी पीएचडी, पहली पीएचडी थी जियो हाइड्रो साइंस में, जिसमें सूरज को चोरी करने से रोकना मेरा सब्जेक्ट था। क्योंकि धरती के अंदर यदि पानी जाएगा तो मैं एवोपरेशन कंट्रोल कर सकता हूँ। यदि धरती के ऊपर पानी रहेगा तो, और धरती के अंदर पानी जब ही जाएगा जब आप उसके फॉर्मेशन को समझेंगे, नीचे जाएगा। और इसने दूसरी पीएचडी दी मुझे नेचुरल इंजीनियरिंग में। ऊपर से 17 किलोमीटर हम लोग पैदल चले नदी के, जहां पर स्टीप स्लोप थे वहां डैम के डिजाइन कॉन्वेक्स, जहां नेचुरल डिप्रेशन था वहां ऐसे कॉनकेव, और जहां जेंटल स्लोप थे वहां ऐसे सीधे डैम बनाना। तो दूसरी पीएचडी मेरी नेचुरल इंजीनियरिंग में थी। एक दिन में सुबह से शाम तक केवल 17 किलोमीटर पैदल चला के साइट सिलेक्शन, लोकल मटेरियल का यूज, एग्जीक्यूशन और मोबिलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कंट्रीब्यूशन, ये 4 चीजें उसने सिखा के कहा अब तू समझ गया, अब तू डैम बनाना बस। तो सर मेरी पढ़ाई आपके कॉलेज में नहीं हुई है। चलिए थोड़ा आगे चलिए यार, छोड़ दो इसको, ये बच्चे सब समझते हैं तो चलो आगे। बस ये समझ लो तुम। देखो तुम्हें जिंदा रखने के लिए सूरज का रोल सबसे बड़ा है। जब सूरज की रेड हीट नंगी धरती पे पड़ती है तो वहां पर हीट वेव बनती है। जब सूरज की गर्मी समुद्र पे पड़ती है तो समुद्र के खारे पानी को डीसैलिनेट करके H2O गैस में बदल के तुम्हारे लिए बादल बनाती है। और वो सारे के सारे बादल हमेशा ब्लू हीट की, ग्रीन हीट की तरफ जाते हैं। जब वो ग्रीन हीट के ऊपर आ जाते हैं तो ग्रीन हीट के ऊपर ब्लू हीट और ग्रीन हीट, ये जो जंगल है इसमें भी एक हीट होती है। इस हीट में O2 का लेवल ज्यादा होता है और इसमें H का लेवल ज्यादा होता है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर ये दोनों मिलकर डिस्चार्ज होते हैं और दोनों मिलकर इसको कहते हैं बारिश। और ये जो बारिश है, ये देखो ये लाल रेड हीट, ये विकास की गर्मी है। हमारी अरावली में 28,000 खदानें चलती थी उस जमाने में। सुप्रीम कोर्ट में मैं 88 में गया और 91 में मेरी विक्ट्री हुई। 28,000 खदानें बंद करा सका 4 राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तुम सोचोगे कि ये राजेंद्र यार बड़ा विकास विरोधी काम करता है। नहीं, मेरे गांव के अनपढ़ किसानों ने जब मुझे ये कहा कि जहां खदानें चलेंगी वहां कुएं में पानी नहीं आएगा, तू कितने ही बांध बना ले, वो सारा पानी खानों में चला जाएगा, तो पहले खान बंद करवा तब हमारे कुएं में पानी आएगा। तो दोस्तों, मैं खानों को एक जमाने में विकास का पैमाना मानता था। जब उस बूढ़े आदमी ने मुझे पक्का किया कि नहीं खान चलेंगी तो हमारी कुओं में पानी नहीं रहेगा, सूख जाएंगे, तब मैंने उन दिनों में एक बहुत ऑनेस्ट चीफ जस्टिस होते थे भारत के, वेंकट चलैया साहब। वेंकट चलैया साहब ने सरकार को लताड़ लगा के सारी खदानें बंद कराई और फिर हमने पार्लियामेंट से कानून बनवाया। 7 मई 1992 को पूरा अरावली प्रोटेक्शन एक्ट बनवा दिया। तो लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, ये केवल मीठा मीठा काम करने से नहीं होता। फिर जब हमने ये पानी लेके आ रहे थे तो पूरा कॉन्टिन्यूएशन में तालाब जोहड़ बनाए। उस जमाने में लोग कहते थे ये डॉक्टर पागल हो गया, उन्हें कहा बारिश होती नहीं और ये जोहड़ बनवाया जा रहा है।
तो मैंने कहा यार मेरा दादा ये कहता था कि जो बारिश आने से पहले पाल बांध लेता है वो कभी बेपानी नहीं होता। बारिश आएगी तो तुम बांधो। तो हम बांधते चले गए, पर फिर भी बारिश नहीं आई। तो फिर हमने क्या किया, बारिश यहाँ जंगलों में हो रही है तो हम पानी को डाइवर्ट करके अपनी वाटर बॉडीज में ले आए। केवल 10% वाटर बॉडी भरी पहली साल, पर 10% वाटर बॉडी भरने से कुछ कुएं रिचार्ज हुए, और कुएं रिचार्ज होने से खेती होने लगी, और खेती होने लगी तो खेती में थोड़ा ट्रांस एवोपरेशन होता है हरियाली से, और थोड़ा जो घास और उससे, तो वो ट्रांस एवोपरेशन और मेरी वाटर बॉडीज का एवोपरेशन, वाटर बॉडीज का एवोपरेशन और क्रॉप्स का ट्रांस एवोपरेशन, इन्होंने माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन शुरू किया, छोटे बादल बनाना। और ये जो छोटे बादल थे, इन छोटे बादलों ने अरेबियन सी से आने वाले बड़े बादलों को बुलाना शुरू किया। अब क्या होगा हमारे यहाँ? अरे बोलो ना, अब बारिश होगी। देखो हो गई बारिश। बस 1 मिनट और दे दीजिए प्रिंसिपल साहब, मैं इन बच्चों का इम्तिहान लेना चाहता हूं। मैंने इतनी मेहनत की इनके साथ, इम्तिहान ले लूं? बताओ भाई ये क्या कह रही है स्लाइड, बताओ जल्दी से। ये स्लाइड तुम्हारे नाम की है। जो कहानी मैंने अभी आप लोगों को बताई उसमें से आपको क्या समझ में आया और ये स्लाइड क्या समझा रही है? ये आखिरी स्लाइड है। गर्मी कम हुई। मैं इनको 20% मार्क्स देता हूं, 20%। जरा ताली तो बजाओ इनके नाम की। चलो जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है, मैं आपका टाइम खा रहा हूं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इसको 50%, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो ना ग्रीनरी आएगी ना टेम्परेचर नीचे होगा। वंडरफुल वंडरफुल, यस। और क्या हुआ है भाई? वंडरफुल, इसको 70% मार्क्स, क्योंकि कार्बन का सिक्विस्टेशन यदि नहीं होगा तो हमारी इकोलॉजिकल हेल्थ वहां ठीक नहीं होगी, बारिश अच्छी नहीं होगी। तो कार्बन का सिक्विस्टेशन इसलिए हुआ कि आपके रिचार्ज हुआ, रिचार्ज से खेती होने लगी और खेती के कारण हरियाली बढ़ी और हरियाली ने कार्बन का सिक्विस्टेशन शुरू किया। वेरी गुड, नेक्स्ट। यस, वंडरफुल, 10% मोर, 80%, यस। हाँ, ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस है, जैसे रिफ्लेक्शन की प्रोसेस शुरू होती है तो जो पहले हीट वेव आती थी धरती पर, पूरी सूरज की गर्मी आती थी, वो इस रिफ्लेक्शन के कारण वापस जाने लगी और अब धरती को जितनी गर्मी चाहिए उतनी नीचे जा रही है, बाकी रिफ्लेक्ट हो रही है उस मॉइस्चर में से। इसके नाम की जरा जोर से ताली बजाओ। वंडरफुल, यस यस यस। अभी थोड़ा और बाकी है, 10% बाकी है। है? मैं सुन नहीं पाया है भाई। हाँ, ये तो खैर प्रोसेस है, रिसाइकल ऑफ वाटर, रिजुनेशन ऑफ द रिवर, ये तो एक पूरी प्रोसेस का नाम ले सकते हैं। बट आपने जो आज ये बातचीत सुनी, इसमें एक इंपॉर्टेंट सोशल इंजीनियरिंग का शब्द बचा हुआ है। यस, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की प्रोसेस शुरू हो गई और क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की प्रोसेस ने अब के लेवल में आके मिटिगेशन शुरू किया। पहले अडेप्टेशन हुआ, फिर मिटिगेशन हुआ। अरे यार, इनके नाम की ताली नहीं बजाई तुमने? बस एक सवाल और बचा है, एक। तुम अब सवाल पूछे बिना जवाब दे दो तो मैं तुम्हारे नाम की, सबके नाम की ताली बजा दूंगा। और मैं इतना बता दूं कि वो सोशल इंजीनियरिंग का सवाल है। हाँ, कुएं में पानी आ गया, वो तो बहन जी ने बताया था कि रिचार्ज हो गया, वेरी गुड। बट कुएं में पानी आने से रिवर्स माइग्रेशन हुआ, खेती होने लगी, लोग वापस अपनी जमीन पर आ गए। जो लोग पहले उजड़ गए थे, जो युवा लोग लाचार, बेकार, बीमार होकर गांव छोड़ के चले गए थे, वो कुओं में पानी आने के कारण वापस अपनी जमीन पर आए और खेती करने लगे और उनकी लाइफ में एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल
रिफॉर्म और रिजुविनेशन की प्रोसेस शुरू हुई. सो थैंक यू वेरी मच. वेरी गुड. सर, आपकी स्वर्ण जयंती पर आपके विद्यार्थियों ने मुझे रेस्पॉन्ड किया. मैं समझता हूं आपके विद्यार्थी बहुत ब्राइट हैं. आपको भी बधाई और आपके विद्यार्थियों को भी. थैंक यू वेरी मच. बैठिए ना, बैठिए. I would like to thank Dr. Rajen Singh for his keynote address. And I think he has shown a total picture. He has started from the problems and then how to recognize the problem in a manner so that we can also try to find out the solutions. And once you know that the problem can be solved by the solution given by you, then you also have to take a stand for you, because as Dr. Singh has mentioned that he has to go to Supreme Court and he has fight for his right, and ultimately he has achieved what he wanted. So with this, I would like to thank all of the speakers, all of the chief guests for this inaugural session. And now I would like to request Dr. Vikas Singh to deliver the vote of thanks. Please. Thank you, Rituraj sir. Thank you. Good morning, everyone. I am delighted to deliver the vote of thanks after this wonderful inaugural session of INCOMAC 2024. First, I would like to express my sincere gratitude to Dr. Rajen Singh sir for taking the time to join us today and for his inspiring words. We are deeply grateful for your presence. Sir, your thoughtful speech has provided an ideal start to our conference. Sir has connected environmental issues with chemistry and gives chemistry department another responsibility to work on the environmental issues. I extend our heartfelt gratitude to Professor V.K. Sharma sir for gracing the inaugural session of INCOMAC and his presence and guidance throughout the preparation of conference. Thank you, Professor Atul Goyal sir, for gracing inaugural session. Sir is one of the plenary speaker at INCOMAC on 25th at 10 a.m. I would like to extend my sincere gratitude to our principal, Professor Deven Kumar Singh sir. Your guidance and support have been instrumental in making this conference possible. I want to say a heartfelt thank you for your continued support and guidance during the preparation of conference. Principal sir was with us yesterday from 8 a.m. to 6 p.m. and guided throughout the day for the preparation of conference. I would also like to extend my thanks to all the invited speakers, participants who have joined us from different parts of India and abroad. Your contribution and ideas are going to make this conference so special. I would also like to acknowledge and thank all the dignitaries and delegates for being a part of this event. Finally, my deepest thank you to organizing team along with students of Department of Chemistry to provide their dedication and hard work. Thank you once again. Have a nice day at INCOMAC 2024. Thank you. So as we conclude this session, I would like to invite all the participants and the chief guests to join us for the high tea. This will be a wonderful opportunity to network, share ideas, and the most important thing, that relax before we continue with the conference. Thank you, and I look forward to seeing everyone there. Thank you so much.